Hello students, welcome to my channel True Maths. Today's next topic is point of intersection of two straight lines. ठीक है, two straight line ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਮੀਨਸ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ax1 plus by1 plus c is equal to 0। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ax2 ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ, a1 b1 a2 b2, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਲੱਗ ਲੈਣੇ ਆ ਸੇਮ ਲੈਣੇ ਆ ਐਜ਼ ਯੂ ਵਿਸ਼। ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਿਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜੋ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿਮਿਲਰ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3x upon 9 1/3 ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ b1 b2 ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਕੀ ਸੀ 1/3, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਆ ਗਏ ਮੀਨਸ ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਲਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਕਦੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਨਸ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ a1 b2 ਮਾਈਨਸ a2 b1 ਉਹੀ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਬ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ? ਅਗਰ ਤਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਬਟ ਜੋ ਕਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2 ਮੀਨਸ ਜੋ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ a1 b2, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ b1 c2, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ b2 c1 ਤਾਂ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆਣਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ a1 ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕੇਸ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ c1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, a1 upon b2। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਡਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਹੈ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ a ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਬਟ c ਕਨਸਟੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਬ ਕੇਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਲੈਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਕੇਸ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਬ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ c1 ਐਂਡ c2 ਵੀ ਕੀ ਹੋਣ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਨਸਟੈਂਟ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚੇ l, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ l, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ a1 a2 ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ a1 upon a2 ਦਾ c1 upon c2 ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੈ l ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲੈਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਉਂ ਲੈਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ a1 ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਦੀ l a2, ਠੀਕ ਹੈ, l b2 l c2 ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਵੇਂ k ਮੰਨ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, m ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ l ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ a1x ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ b2y ਪਲੱਸ c1 ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜੀ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨॉट ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੈਨ a1 upon a2 ਡਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b1। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ a1 into b2, ठीक है, इधर आके माइनस हो गया a2 इंटू b1 इज इक्वल टू नॉन जीरो हो गए। तो मीनस कोई ना कोई सोल्यूशन है, इसको आप आगे सॉल्व करके जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 23-12 वाला मैथड लगा लो, सिंपल ही आप एक समझांगे।
मैं एक एग्जाम्पल भी लिखी हुई है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਅਬਸਿਸਾ ਦੀ ਐਂਡ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਰਡੀਨੇਟ x ਐਂਡ y ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਟੂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ठीक है। इसका आप की फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो बच्चे इसका सोल्यूशन किस तरह फाइंड आउट करांगे इसनों। टू लाइन्स है, ठीक है, गिवन ने अपने कोले, तो आप एक्स तो ही स्टार्ट करते होने a1 x प्लस b1 y, ठीक है, इज इक्वल टू c1 लै लो इत्थे, बिकॉज अपने कोले टू स्ट्रेट लाइन की गल हो रही है। ए वाली स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सही ने, स्ट्रेट लाइन कुछ भी अपन ये है ना मोल्ड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। उस तरह ही कोफिशिएंट्स लिते हुए हैं, जिस तरह हुण a1 की वैल्यू कितनी होगी 1, b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू 3। सिमिलरली a2 की 6, b2 की वैल्यू की है अपने को -1 एंड c2 की कितनी है 11, ठीक है। तो हुण इसनूं आपां सॉल्व करते हैं। एक्स वाई एंड 1 लिख लो, जो भी कुछ आप सी या कुछ भी लिखना होंगे है ना, या थर्ड इस तरह 1 2 3 नंबर लिख लो जिन्ने भी अपने को है। इस चीज़ को आप 1 पोर्शन मानते हैं, इसनों सैकेंड, इसनों थर्ड। तो 12 वाला लगान लगे क्योंकि आप पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन फाइंड करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन फाइंड करने वास्ते सब तो पहला तो ये चेक कर लो। सिमिलरली हुणे हुणे मैं तुहानूं दस्सिया a1 a2 b1 b2 की ने ये नॉट इक्वल ही ने, ठीक है, नॉट इक्वल है। तो नॉट इक्वल के केस दे विच अपने कोल की है पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन की है फाइंड हो जाता है। फिर भी अगर तुहानूं जिस तरह ओरली नहीं करने आते तो इसनूं थोड़ा रिटन दे विच लिख के कर लिया करो, जिस तरह एक्स जिस तरह 1/6 है ना, ठीक है, a1 a2 डज नॉट इक्वल टू -4/-1। तो हुण क्लीयर ही है कि ये की इक्वल नहीं है, ये 1/6 है और एक ही अपने को 4/1 है। तो एक ही है नॉट इक्वल ने। तो नॉट इक्वल के केस विच की है अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन, ठीक है। अगर तो तुसी आ कोऑर्डिनेट्स है याद रख सकते तो डायरैक्ट वैल्यूज पुट कर दो, अदरवाइज ये नहीं हैगा राजे भी एक ही एवं ही आया होया है, ठीक है। एक ही है एक प्रॉपर फॉर्मूला 23-12 वाला फॉर्मूला लगा के ही ये कोऑर्डिनेट आपां फाइंड किया है। ये मैं डायरैक्टली इत्थे ही लिखता क्योंकि एग्जाम्पल दे विच लगे, एग्जाम्पल दे विच जो आपां करांगे उदों वधिया तरीके नाल समझ आएगा। उस विच तां a1 a2 b1 b2 ही लिखते रह जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं। तो हुण की हुंदा है, इत्थे भी लिख लीए है ना, तो पता चल जूगा x दे अपॉन। तो 2 लिखना है, 2 वाली मीनस आ 2 वाला पार्ट y वाला सारा पार्ट, ठीक है। ਇਹਦਾ मीन की है ये ਹੁੰਦਾ 2 वाला सारा पार्ट। तो हुण की लिखांगे -4, तो इधर कितना है -1। 2 वाला ही देखना है, देखो इधर -1 यानी कि y का कोफिशिएंट -4। तो ठीक है, इधर सैकेंड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के y का कोफिशिएंट -1। तो थर्ड नंबर 23-12 मीनस जो 3 चीज़ा हों तो कॉन्सटेंट्स को लिया गया, ठीक है। ये किन्ने है 3 एंड 11, यही चीज़ है 3 एंड 11। 1 की है ए दे एक्स के कोफिशिएंट है, इत्थे किन्ना है दोनों ही प्लस दे है, इत्थे 6। सैकेंड फिर आप रिपीट करते होने -4 एंड -1। हुण इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस दे नाल, इस दे नाल। आगे देखते हैं अपने को की चीज़ है एक्स अपॉन की लिखांगे -4 इंटू 11, ठीक है। -4 इंटू 11 कितना आ गया -44। तो इत्थे -1 इंटू 3 है अपने को है ना, तो की आ जाएगा इत्थे मिनट स्टेटमेंट दे विच कोई मिस्टेक तो नहीं, हाँ इत्थे अपने को +c1 हुंदा है ना, इत्थे अपने को +c1 हुंदा है। तो सारी इक्वेशन को इधर ही लै जाओ। तो इत्थे -1 इत्थे चेक कर लो बस राजे, इक्वल टू 0 हुंदा है इत्थे। एक मिनट मैं दोबारा लिखती हूँ इक्वेशन। सैकेंड स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हैगी अपने को -11 0। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है x -4y -3 = 0। थोड़ा सैट कर लिया करो इज अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। a1 x b1 y + c1 हुंदा अपने को, इत्थे मैं गलती नाल इक्वल टू लगाता, सैट कर लो। इत्थे इक्वल टू 0 हुंदा है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो इत्थे कोफिशिएंट्स भी चेंज हो जाएंगे, बस इत्थे माइनस आ जाएगा दोनों जगह, और तो कुछ नहीं, ठीक है। तो हुण -4 इंटू -11 + 44 -1 इंटू -3 प्लस का आएगा। बट अपन पता है जो आप मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो उसनों लैफ्ट साइड से भी लैके जाना होंगे। तो फिर की साइन आ जाएगा राजे यही वाला, ठीक है। इस चीज़ को इत्थे नहीं करते, इत्थे देखो। तो x अपॉन
हाँ जी 44 प्लस द माइनस ऑफ 3 ठीक है। y की है अपने को मल्टीप्लाई कर दो 6 इंटू माइनस 3 माइनस ऑफ 18 माइनस 11 एंड 1 माइनस 11 बट एक माइनस होर होंगी है तो की आ गया अपने को प्लस 11 1 अपॉन एक ही है अपने को 1 इंटू 1 माइनस 1 बिकॉज इतने माइनस 1 है अक्रोस एरो दे विचों हो गया देखो -4 तो -1 है ना ये कन्फ्यूज नहीं हो जाना 1 इंटू -1 एंड 4 इंटू -6 -24 बट जो आप इधर लैफ्ट साइड से लिया तो क्या हो गया प्लस द 24 ठीक है। सोल्व कर लिए इसनों 44 दे विचों 3 माइनस किते 41 y -18 चो 11 माइनस किते माइनस ऑफ 7 1 एक ही आ गया अपने को 24 प्लस दा सी ठीक है। ये चीज़ आ गई तो कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए x इज इक्वल टू सब तो पहला तो x आ वाले पोर्शन में तो सबनों सोल्व करना आंदा ही होएगा 1/23 देख के रख लो ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 41 ऊपर चला गया x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y अपॉन -7 एक बार 1/3 दे 1/23 देख के रख लो तो -7 ऊपर चला गया तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू अपने को लेके आ गई -7 अपॉन हूँ इन्ना पॉइंट से एक्स से इन्ना पॉइंट से की है स्ट्रेट लाइन की है मीट कर रही ने ठीक है। ये अपना की आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसनों कोऑर्डिनेट की फॉर्म दे विच लिख दो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट 41/23 -7/23 क्लीयर ठीक है। इस नाल ही छोटी छोटी कुछ होर ने टर्म्स डिस्कस कर लिए आप की चीज़ ने कंसिस्टेंट इक्वेशन इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट इक्वेशन किहड़ियां हुंदियां ने कंसिस्टेंसी वो जिस तरह आप 10th ਦੇ ਵਿੱਚ भी पढ़ते हो ना कोई भी दो इक्वेशनस ने 2 इक्वेशनस है 2 स्ट्रेट लाइनस है कोई भी लीनियर पेयर है ये लीनियर पेयर ही है हूँ जी मैं आ सॉल्व की है 3x - 4y ये 2 वेरीएबल्स हैगी तो लीनियर पेयर ही है ना बच्चे ठीक है। जो इसनों भी आप कुछ भी सॉल्व करते हैं तो अपने को कोई यूनीक सोल्यूशन नो सोल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आंदा होंगे ना इस तरह तो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट भी तुहाडे कोले वही चीज़ है जो तो अपने को 2 इक्वेशनस नू 2 लीनियर इक्वेशनस नू स्ट्रेट लाइन नू सॉल्व करके कोई ना कोई एक वन कॉमन सोल्यूशन मिलता है। जिस तरह कॉमन सोल्यूशन मीनस एक कॉमन कोई पार्ट ठीक है मिल गया अपन कोई पॉइंट मिल गया एक कोई कॉमन पॉइंट मिले जिससे मीट कर रही है हो सकता 2 होन बट एक कॉमन यूनीक पॉइंट मिल गया तो उत्थे की है सोल्यूशन तुहाडा कंसिस्टेंट है वो इक्वेशनस की हो जाएंगे कंसिस्टेंट इक्वेशनस। तो अगर किते भी सोल्यूशन दो जो है स्ट्रेट लाइन नू 2 इक्वेशनस नू लीनियर इक्वेशनस नू पेयर नू सॉल्व करके अगर अपन कुछ भी सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट मिलता कोई भी ये एटलीस्ट 1 मतलब मैक्सीममली किन्ने भी हो सकते हैं। मैं बोलिया कि जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन जिवें आ जा रही है सैकेंड स्ट्रेट लाइन इत्थे है तो हुण ये जरूरी नहीं कि 1 पॉइंट ते मीट करे हो सकता है ना फिर भी किसी होर पॉइंट ते भी मीट कर रही होवे मीनस एटलीस्ट 1 सोल्यूशन होवे जिहदा ओनू कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं नो सोल्यूशन उसनू इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन ठीक है इक्वेशन। तो नैक्सट एक होर इक्वेशन है डिपेंडेंट इक्वेशनस किसनू कहते हैं इसकी मैं डेफिनेशन प्रॉपर लिखी है क्योंकि वो तो जस्ट दिमाग च रखने वाले सी कि मीनस सॉल्व करन तो बाद अगर तो किसी का एक सोल्यूशन आता है तो कंसिस्टेंट अदरवाइज डिपेंडेंट गल हो रहा है डिपेंडेंट बारे पढ़ते हैं ए सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशन इज सैट टू बी अगर अपने को 2 ठीक है इक्वेशनस दित्तियां ने वो लीनियर इक्वेशनस जिस तरह स्ट्रेट लाइन दियां दित्तियां ने सिस्टम ऑफ द 2 इक्वेशन इज सैट टू बी अ सिस्टम ऑफ द डिपेंडेंट उन्होंने इक्वेशनस नूं ही आप डिपेंडेंट इक्वेशनस बोलांगे इफ 1 इक्वेशन ऑब्टेन एक 1 इक्वेशन मान लो एक इक्वेशन है is obtained from the other by multiplying a non-zero real number जिस तरह की आ वाले केस दे विच a1 upon b1 a2 b1 upon b2 ठीक है c1 upon c2 आ वाला केस कितना सी ना कि तिन्ने इक्वल है इक्वल टू के मान लिया कि कोई नॉन जीरो नंबर सी तो वो की कह रहे हैं कहते जदों भी डिपेंडेंट इक्वेशन उन्होंने बोलते हैं जदों एक जिहड़ी है इक्वेशन दूसरी इक्वेशन तो बने जदों आप उसनूं किसी नॉन जीरो मीनस कॉन्सटेंट नाल जां फिर रियल नंबर नाल मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है क्योंकि वो ये डिपेंडेंट हो जाएगी डिपेंडेंट किवें हो जाएगी जिवें a1x प्लस b1y प्लस c1 हुण इत्थे मैं जे मल्टीप्लाई के लगा दा a2x प्लस
b2y प्लस c2 ठीक है इज इक्वल टू 0। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਬਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਪਿਕ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 3 ਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਗਰੈਂਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਤਾਂ if you like it then share with your friends. Thanks for watching.